नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज 22 अगस्त में आज देखेंगे द हिंदू का एडिटोरियल। साथियों, जैसा कि हम कहते आए हैं कि इंग्लिश को आप इंग्लिश में ही पढ़ें। यदि आप किसी दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करके पढ़ते हैं, आप यकीन मानिए बहुत समय लग जाएगा सीखते हुए, और वो आपकी जो ज्ञान अर्जन होगा वो शुद्ध नहीं होगा। क्योंकि इंग्लिश आप जब दूसरी भाषा को किसी दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करते हैं तो वो पूरी तरह से उसका समान अर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि भाषा दूसरी है, उसके नियम अलग हैं। यकीन मानिए, यदि आप जैसे इसको फॉलो करते हैं पैटर्न को, आप इंग्लिश को सीधे इंग्लिश से सीखिए। आपके दिमाग में आपको तकलीफ होगी, कुछ दिन आप पढ़ेंगे, 4 लाइन से दुखेगा, पढ़ने की इच्छा नहीं होगी, लेकिन वो आपको आज अपने घर पे करना होगा। वरना क्या होगा, कई लोग सालों से अखबार इस तरह से पढ़ रहे हैं ऑनलाइन और तरह से, लेकिन वो कभी भी उस पर ध्यान नहीं देते। कभी भी ऑनलाइन पढ़ लिया, सुन लिया किसी को, लेकिन नहीं, उन्होंने वोकेलरी के अर्थ बता दिए। या बाबू एग्जाम में आपको वो 1 घंटे आधे घंटे तक इंग्लिश पढ़ने पड़ती है, उनका सिर दुखने लगता है। इसलिए आज आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगी। आप 5-10 दिन से पढ़ के लगातार पढ़ के देखिए, आपका दिमाग खुद से ही उसके अर्थ निकालना शुरू कर देगा। जो कठिन लगता है, आपके पास गूगल है, उसका आप थोड़ा वर्ड सर्च कीजिए और आपको आंसर मिलते चले जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। मेरी आवाज़ पे ध्यान दीजिएगा, मैं बहुत स्लो बोलूँगा और आपको ऐसा लगेगा कि आपको अर्थ समझ में आ रहा है। लास्ट लैब ऑन जोए बिडेन। Biden and Harris have to show they can lift the US out of the virus-induced crisis. Former US Vice President Joe Biden has become the Democratic Party's official nominee for the 2020 presidential election after a glitzy 4-day extravaganza at the Democratic National Convention alongside his running mate Kamala Harris. He will seek to oust incumbent Donald Trump from the White House. If he does so, an array of remedial policy action will be required from an early stage to lift the US up from the economic destruction caused by the ongoing COVID-19 pandemic. Besides, he will need to urgently attend to a series of controversies and setbacks, some with international repercussions, that the Trump administration has become enmeshed in. Does Mr. Biden possess the political heft, personal charisma, and party mandate to do so? The party answered with resounding yes to all three questions at the convention, which featured eloquent speeches by former presidents Barack Obama and Bill Clinton, and First Ladies Michelle Obama and Hillary Clinton, as well as party heavyweights including Bernie Sanders, Nancy Pelosi, and Elizabeth Warren. While a few younger Democratic leaders were featured too, the convention left little doubt that the old guard was still running the show, even if it was seeking to woo the next generation of voters within the framework of an altered political reality. At the heart of that reality stands Mr. Trump, wobbling as he scores lower than Mr. Biden in the opinion polls, mostly for his bungling response to the pandemic, yet relentlessly throwing punches on mail-in voting and appealing to the silent majority that Mr. Biden, if elected, would hike taxes on Americans by $4 trillion, eviscerate the Second Amendment, expand sanctuary cities, and end fossil fuels. To effectively counter these arguments and avoid another debacle of the sort that Ms. Clinton faced in 2016, Mr. Biden and Ms. Harris need
to show only one thing, that they can save the US economy and repair the country's standing with the rest of the world, especially by reclaiming a pivotal role in the multilateral governance of global public health, climate change, and trade. Whether the Democrats basking in the self congratulatory afterglow of the convention and reaffirming their commitment to liberal values, play their hand carefully through this endgame scenario, or whether the Trump vision of an inward looking US still carries the day remains to be seen. What is clear is that electoral electoral outcome will be both a referendum expressing how much a broadly inclusive paradigm of the American dream still resonates with the people, and a signal of the degree of openness that it will tolerate towards the people of other nations. Mr. Biden will have to bring this A game to this final lap. तो साथियों, ये आज हमने सिर्फ इंग्लिश में ही पढ़ा, इसको देखा, तो ये एक तरह से गेम के रूप में इस आर्टिकल को बनाया था। लास्ट लैप मतलब कोई, अब हम रेस देखते हैं 100 मीटर की, 400 मीटर की, उसमें 100 मीटर के अगर 4 लैप हुए तो लास्ट लैप मतलब आखिरी लड़ाई हो रही है गेम में। तो ये कंक्लूड इसने यही किया है कि भाई अपने इस गेम को फाइनल लैप में कैसे जो बिडेन है वो कैसे उसको खेल पाएंगे और ट्रंप को क्या कर पाएंगे। तो मेरे साथियों, बहुत ही अच्छा आर्टिकल था। आप एक लाइन अगर ध्यान देके पढ़ें तो आपको किसी की जरूरत नहीं है ट्रांसलेट करने की, और आपका दिमाग खुद में वो ऊर्जा प्रकट करने लग जाएगा। साथियों, यकीन मानिए, यहाँ पे दुनिया में आपको बहुत अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, कोई कुछ भी करने के लिए, वो रोज 40 मिनट के 1 घंटे के वीडियो में आधे घंटे उनका प्रचार होगा कि ये होगा, बातें होंगी, और उसमें वो 2-4 मिनट में वोटों के लिए बता दी, इससे कुछ नहीं होने वाला। आपने 6-7 मिनट 8 मिनट में ही वीडियो आपने सिर्फ ये पढ़ा, ये आपके दिमाग को बहुत जोर देने वाला है। ये आपका दिमाग खुद से उत्तर ढूंढ, आप पढ़िए, इसको सुनिए एक बार और फिर कहीं घूमने चले जाइए, फिर 2 बार पढ़िए, फिर 1 बार पढ़िए, आपका दिमाग खुद से इसको सॉल्व करने लगेगा। मैं एक कभी इस तरह का नरेशन दे रहा हूँ, बाकी कल जो मैंने वीडियो दिया था वो पूरा समझाया था, एक लाइन एक शब्द, लेकिन हमें कभी दिमाग को स्ट्रगल देना होगा और खुद से वो पढ़ना होगा, ताकि दिमाग वो टेक्निक डेवलप कर सके, वो स्किल डेवलप कर सके जो हम एग्जाम में। और याद रखिए, एटलीस्ट लगातार 2 घंटे कठिन इंग्लिश पढ़ने की आदत डालिए। 2 घंटे क्यों? क्योंकि यदि एग्जाम में आपको आधे घंटे 40 मिनट वो आपको कठिन इंग्लिश पढ़नी है, जिसमें आपको दिमाग दर्द हो रहा है और आपको ईजी लगे वो काफ़ी, तो आपके दिमाग को उससे 4 गुना ताकतवर बना लीजिए। साथियों, बातें बहुत हैं, जुड़े रहिए, और जीतना है हमें इस नौकरी के खेल में। ये भी हमारा लास्ट लैप की तरह ही आने वाला है। बहुत बहुत शुभकामनाएं।